Hello students, good morning. Welcome back to your English class. Today we are going to study the second poem of your textbook Honeydew entitled Geography Lesson. Okay? The poem Geography Lesson is written by Zulfikar Ghose, a famous poet and novelist who was born in India before independence, and after independence he migrated to Pakistan and now he is settled in the USA. So the geography lesson is a 24-line single stanza, as you can see, poem, and that does not have any rhyme scheme. In the poem, the poet talks about three important things. First, how everything looks from the sky. Second, how civilization was established. And the third one, the reason behind the unorganized settlement. And the third one is his question to himself, why people hate each other. This is the most important thing. Okay, now let us discuss the detailed line-wise explanation of the poem. Okay, when the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style. When the jet sprang into the sky. Sprang means to jump or move very quickly. Okay. So now in the first stanza, the poet says, when the jet sprang means lifted off. When the plane lifted off into the sky, it was clear, which means that the poet understood why the city had developed the way it had. Because everything looked so small that a mile seemed to be like 6 inches. Everything looks small from above. And it becomes inevitable, that is, it becomes certain that everything developed unplanned, without style, and without any principle of an organization on the ground, which means earth. Now the poet repeats the first line, when the jet sprang into the sky, that is, he saw all these when the jet, which means airplane, the flight was in the air. Okay, so first stanza में पोएट ये कहता है कि जब उसके प्लेन ने, जेट एयरप्लेन ने, फ्लाइट यू अंडरस्टूड, तो जेट एयरप्लेन जैसे ही आसमान की तरफ ऊंचा उड़ता है तो उसको वहाँ से सिटी बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है और उसको ये समझ में आता है जब 6 इंचेस की दूरी पे उसकी फ्लाइट जेट एयरप्लेन ऊपर पहुंचता है, तब उसको ये समझ में आता है कि ये जो सिटी है वो किस तरह से डेवलप्ड हुई है. ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कोई आके उसको डिज़ाइन करके गया है कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए और यहाँ पे हॉस्पिटल, बिल्डिंग्स और ये सब होनी चाहिए. ऐसा नहीं है. मीन्स लोगों की ज़रूरतें, लोगों के नीड के अकॉर्डिंगली सिटी में डेवलपमेंट्स होते हैं. ओके, जैसे कि जब आप सिटी में चलते हो बहुत सारी गलियों में, सड़कों पे, तो वहाँ पे आपको हैपहैज़र्ड, विच मीन्स बहुत सारे जिगजैग रास्ते, ऊबड़ खाबड़ रास्ते दिखाई देते हैं. लेकिन जैसे ही फ्लाइट में, प्लेन से जब वो ऊंचे ऊपर उठता है पोएट, तो उसको ये रियलाइज़ होता है कि अब ये जो नीचे के हैपहैज़र्ड जितने भी जिगजैग रास्ते थे या गलियां या ऊबड़ खाबड़ जो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, वो भी ऊपर आसमान से बिल्कुल एक जैसा नज़र आता है और ऐसा लगता है कि सब कुछ कितना स्मॉल है. ऊपर से उसको सब कुछ स्मॉल नज़र आता है और सब कुछ लेवल में और प्लान्ड नज़र आता है. ऐसा लगता है कि उसको किसी ने प्लान करके वहाँ पे सेटल कर दिया हो कि यहाँ पे हॉस्पिटल, यहाँ पे बिल्डिंग्स, यहाँ पे स्कूल एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें. विच मीन्स कि जैसे ही उसका प्लेन, जेट प्लेन हवा में 6 माइल्स की दूरी तय करता है, उसको उस आसमान से नीचे की सारी चीज़ें स्मॉल नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, छोटी दिखती हैं. और इस तरह से जैसे ही और ऊंचाई पे वो पहुंचता है, तब उसको ऐसा रियलाइज़ होता है कि जितनी भी डेवलपमेंट सिटी में हुई है वो बिल्कुल प्लानिंग के साथ किसी ने करी है. ओके,
Now let's move on to the second stanza. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography, that land and water attracted man, was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. So here in the second part, the poet says that when the plane reached 10,000 feet in the sky, the poet came to know that why the cities of countries are located near the rivers and also the valleys are so populated, which means कि पोएट को जैसे ही जब पोएट का जो प्लेन है जब 10 फीट की दूरी तय करता है तब वो ऊपर से देखते हुए सिटी को वो वहाँ से उसको दिखाई पड़ता है कि कितने वैलीज़ में पॉपुलेशन है और कितने रिवर के पास जहाँ पे सिविलाइजेशन, विच मीन्स कि वहाँ पे लोग ज़्यादा इकट्ठा हैं और उसको सब कुछ वहाँ से दिखाई पड़ता है और ये उसको समझ में आता है कि जो ज्योग्राफी का जो लॉजिक है, विच मीन्स कि जहाँ पे नदियाँ होती हैं, जहाँ पे रिवर्स होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में कि सभ्यताएं, सिविलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे फ्लोरिश्ड हुई हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नदियों से आपको ह्यूमन बींग्स को डिफरेंट रिसोर्सेस के लिए पानी मिल जाता है इजीली। जैसे कि अगर पानी की जगहों पे जहाँ पे रिवर्स फ्लो होती हैं, जहाँ पे स्ट्रीम होती हैं, जहाँ पे नदियाँ बहती है, वहाँ पे पॉपुलेशन आपने देखा होगा थिक होती है, घनी आबादी होती है, क्योंकि लोगों को चाहे वो इंडस्ट्री सेटल करना हो या फिर फार्मिंग करनी है या एग्रीकल्चर करना है, तो उसके लिए वाटर रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, सो दैट इज़ वाई the areas near the rivers are really so much populated. Okay, now next the poet provides the logic of geography, which is clearly delineated, that means depicted. It is very expressed clearly that the reason that made the people settle in an unorganized way. Okay, now according to him, land and water, which are the lifeline and the reason for our survival, attracted the early humans. The land here refers to the green land and which we cultivate food and make the shelter. Like the previous stanza, the poet repeats the line, when the jet airplane reached 10,000 feet, to tell that he came to know about all these only when the airplane was 10,000 feet up in the sky and he could see land and water. तो जैसे ही 10 फीट की दूरी पे ऊंचाई पे उसका प्लेन पहुंचता है और वहाँ से वो लैंड और वाटर को देखता है, तब वो समझ पाता है कि ज्योग्राफी का जो मेन लॉजिक है कि जहाँ पे नदियाँ हैं, जहाँ पे वाटर है, वहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। और पुराने टाइम पे भी जो अर्ली लोग जिन्होंने सिविलाइजेशन जितनी भी अभी तक गई है, उन्होंने वहाँ पे उतना फ्लोरिश क्यों किया, कैसे कर पाए? क्योंकि उनको इन नदियों के पानी से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती रही और इसीलिए वजह से वहाँ पे कल्टीवेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है, खेती की जा सकती है। और ग्रीन लैंड आपने देखा होगा, जो वैली होती है, जहाँ पे जो प्लेन लैंड्स होते हैं, फ्लैट लैंड्स, वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे अगर आप रहने जाओगे तो वहाँ पे कम्युनिकेशन मुश्किल है, वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजिकल या फिर एग्रीकल्चर बहुत मुश्किल है वहाँ पे। लेकिन फ्लैट लैंड्स के में रहना आपके लिए बहुत ही सूटेबल होता है लाइफ के लिए, और इसीलिए वहाँ पे लोग ज़्यादा बसते हैं। ठीक है, तो पोएट को ये रियलाइजेशन होता है जब वो 10 फीट की ऊंचाई पर, उसका जो एयरप्लेन है जब 10 फीट की ऊंचाई पर जाता है और वो वहाँ से नीचे अर्थ की तरफ देखता है, उस ग्राउंड की तरफ देखता है और उसको नदियाँ और पानी दिखाई पड़ते हैं, लैंड दिखाई पड़ते हैं, तब उसको समझ में आता है कि यहाँ लोगों को लैंड और वाटर के पास इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों होती है। ओके, now when the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. Okay, so in this third part, the poet says that when the airplane was at the height of around 6 miles, it became clear that the earth is round and that it has more sea, here it means water,
than land. But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities, and to kill from that height. It was not clear why. This stanza is really important because it is showing the philosophical thought of life, and here the poet is also giving a message to all the human beings. As in this stanza, in these lines, the poet is expressing his mind that he is unable to understand the tendency to build borders, to erect walls, to create fences. Then he reflected that people on earth are selfish and narrow, for they hate each other. He found the earth to be one, but not the people living on this earth are divided for shallow reasons. ओके, सो इस लास्ट लाइन्स में पोएट बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल थॉट के बारे में बताते हैं कि जब वो 6 मील की ऊंचाई पर ऊपर पहुंच जाते हैं, वहाँ से जब धरती को, जब अर्थ को देखते हैं तो वो उन्हें गोल दिखाई देती है और इनको ये समझ आ जाता है कि यहाँ अर्थ पे पानी ज़्यादा है लैंड से ज़्यादा। लेकिन साथ ही साथ उनके लिए ये समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि क्यों लोग एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, एक दूसरे को क्यों मारते हैं। तो उनके लिए एक मिस्ट्री है कि अगर देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स ने कितनी डेवलपमेंट कर ली और दुनिया में हर चीज़ एक जैसी है। मीन्स जैसे ही वो ऊपर से पहुंचते हैं और वहाँ से अर्थ को देखते, ग्राउंड को देखते हैं तो उन्हें अर्थ एक जैसा दिखाई पड़ता है। सारे कॉन्टिनेंट्स कनेक्टेड नज़र आते हैं, सारे जितने ओशियंस हैं वो एक जैसे एक साथ यूनिटी में नज़र आते हैं। लेकिन ये यूनिटी इंसानों के बीच में क्यों नहीं है? क्यों लोगों ने अपने बीच में फेंसेस बना के रखे हैं, बॉर्डर्स बना के रखे हैं? लोगों ने अपने मतलब के लिए इस पूरे ब्यूटीफुल लैंड को, पूरे ब्यूटीफुल प्लैनेट को हिस्सों में बांट के रखा है। और उन्होंने यही बात बोली कि मुझे इतनी ऊंचाई पर जाने पे एक एक चीज़ समझ में आ गई, ज्योग्राफी की लॉजिक समझ में आ गया और लेकिन सब कुछ समझ में आया कि ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ और सब कुछ। लेकिन बस एक बात जो नहीं समझ में आई वो ये कि लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा नफ़रत एक दूसरे को लेके क्यों है, क्यों वो इतने मतलबी हैं, दुनिया में रहने वाले लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग क्यों है। So that is the main point of the poem, that is the main message of the poet which he is trying to show and express to all of us। और इस चीज़ को हमें भी समझना चाहिए कि ये इंसान जो होते हैं वो एक दूसरे से नफ़रत क्यों करते हैं। ये एक मिस्ट्री है उनके लिए, क्योंकि सब कुछ तो क्लियर हो गया थोड़ी थोड़ी देर पे, जब जैसे ही उनकी फ़्लाइट, जैसे ही उनका जेट प्लेन हवा में ऊपर की ओर उठता गया, उनके ऊपर सब कुछ क्लियर होता गया। बस एक चीज़ जो क्लियर नहीं हुई वो यही थी, वो यही मिस्ट्री है कि लोगों के बीच में इतनी नफ़रत क्यों है। इसी लाइंस के साथ उन्होंने पोएम को एंड किया है, दैट इट वाज नॉट क्लियर व्हाई। ओके, सो आई होप you have understood the poem. Okay, I'll see you next class. Thank you.